Hey, Rahul, can you just confirm you are able to hear me and then able to see my screen also? Yes, Bob. I can hear Great. you properly and you can see able to see your screen. Perfect. Thank you. So we'll get started in the next 2 minutes. Okay. Yep, sure. Hey, good evening. Let's get started. Okay. So first of all, I would like to say thank you everyone to join this session. So I know it's a busy day, Sunday for everybody, and it's evening to spending time with your family rather than you are spending that time with me. But I will make sure that this time will be really valuable for you to understand the uh, maybe what are those top five investment sectors, industries which will give you a good returns. And that again
It is based on analysis, okay, and then it's not just like it is. Don't consider this as advice, but you need to perform your own actions also to learn and understand those stock sectors कि वो high performance high return कैसे बनेंगे इंडिया में. उसका logical reason I am going to give you with this, and it will be very short and sweet, hardly 5-6 slide only, and then we'll give you a couple of things which we will be using as a like starting point and then analyzing those stocks, okay, or sectors be. So I have jot down almost 5-6 sectors, but somehow there are other sectors also, those are also doing good. So ये session हम जो ले रहे हैं, it is just for the educational purpose. It's not any recommendation, or even I am not like authorized SEBI expert to talk or registered investment advisor to give any kind of advice, tip or anything. So this is just my analysis which I am sharing with you. Then your basically responsibility will be आप जाओ उसको देखो उसमें क्या है, क्यों मैंने बोला है, और आप आपका एनालिसिस करो. You take advice from your financial advisor and then find out those stocks and then invest it. But I will make sure that the session will be really helpful for you. How I have done this, you can also do that. That is my whole purpose of showing this. And then it will definitely add in your what do you call financial goals in 2025. Okay. Because one of the goal everybody should have in 2025, that financial goal, and that financial goal is one thing which can make a good money by putting your money into stock market, mutual funds, bonds, ETF, कहीं भी डाल के आप कर सकते हो. And it need a little bit study and थोड़ा सा आपको information मिलता है तो कर सकते हैं. Now, who am I, and then what I am doing? I am like a member of, and then mentor for the fire community. And then it started in 2018. By 2018 में start हुआ है ये. It has been started in early also, but we were not so active. हम क्या करते हैं? We are doing portfolio analysis for people. We are doing technical research, fundamental research, quant research. We're giving training and courses also for people. We are writing our screeners to give you the best stocks. कौन सा sector अच्छा है, कौन सा स्पेसिफिक इंडस्ट्री अच्छा करेगा, उसमें कौन ज्यादा परफॉर्म करेगा, ये सब कुछ हम यहाँ से निकालते हैं. Recently we started, last 2.5 years we started into quant analysis also, which is like a peer analysis and sector analysis, and then based on that, if 3 or more what do you call the drivers which shows the positivity, then it is called as a quantitative analysis based on quantity, qualitative factors of those stocks. वो भी help करते हैं. Then we are writing couple of signals around it so that it should manual intervention और जो efforts है वो कम कैसे हो जाए, और हम जो programming है या कुछ ऐसे screeners है जो filtering mechanism we are using it. And then we are doing our own trading and investing. We don't do any kind of a portfolio management, investing behalf of any customer. We don't do that. PMS हम नहीं करते, किसी का पैसा लेके हम invest नहीं करते. We don't do that because that is not our DNA. Our DNA is mainly knowledge use करो, knowledge को use करके कैसे हम उसको utilize करें और वो कैसे दूसरे करें, ये यही काम है. Now ये मेरा सबसे बड़ा agenda है for this session is like you should have a one financial goal for 2025. Okay. कुछ हो ना हो, I think health wealth का ये होना ही चाहिए. अगर if you want to see that next year should be good for you, I think everybody should have at least one financial goal for this year. Okay, continual goal होते रहेंगे, right? छोटे छोटे गोल बन के एक बड़ा कोई आप अचीव कर रहे हो, बट एक गोल ये रखो कि ये साल में मुझे भाई इतना पैसा बनाना है या कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है तो मुझे इतने रिटर्न मिलने चाहिए, कुछ तो करो. बिकॉज दैट इज समथिंग, इफ यू डू इट, आई थिंक आई विल से दिस सेशन जो मैंने ले रहा हूं, मैं मेरा टाइम दे रहा हूं, मेरा एनालिसिस किया है, वो दैट इज लाइक वर्किंग फॉर मी एंड इट शुड वर्क फॉर एवरीबॉडी ऑल्सो. सो होपिंग फॉर द बेस्ट. सो आई थिंक मैं अज्यूम करता हूं आप लोग ये करोगे. नाउ ये सेक्टर जो है, ये सेक्टर्स जो है ये 2024 वाले सेक्टर्स है कुछ. तो मैं आई विल ओपन द लाइक आपके लिए मैं लॉबी में ओपन करता हूं. मुझे बताइए ये कौन से 5 सेक्टर थे जो बहुत ज्यादा रिटर्न दे पाए थे.
मुझे बताया तो भी चलेगा। आई विल शो यू दिस, लाइक आई विल जस्ट, ये जो मैंने छुपा के रखा है वो बताता हूँ, बट आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर, यहाँ पे लोग फिजिकली भी बैठे हैं, दे कैन ऑल्सो टॉक, कि कौन सा वो सेक्टर होगा 2024 मींस दिसंबर तक के डेटा है। इफ यू सी हियर, दिस इज लाइक दिसंबर तक के डेटा है मुझे मेरे पास। सो एंड आई गॉट इट फ्रॉम एनएससी ओनली, कोई मैंने खुद नहीं बनाया ये। तो ऐसे कौन से सेक्टर होंगे, ये 4-5 सेक्टर आपको जो मैंने ढक के रखे हैं, जो छुपा के रखे हैं, जिसने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है, बता पाओगे कोई? बैंकिंग एक आंसर आया है, बैंकिंग। सो बैंकिंग का जो रिटर्न है ओवरऑल दिस ईयर का है 6.2%। आई एम बेसिकली आस्किंग क्वेश्चन, दोज आर बीन हिडन हियर, कौन से हो सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। इंफ्रा मैं एक पकड़ रहा हूं, सॉरी अबाउट माय राइटिंग, मैं एक हो गया इंफ्रा, मुझे 5 चाहिए। फार्मा, फार्मा, एनर्जी, मैं उसको पावर भी बोलता हूं क्योंकि अभी हमारा एज सच वो उसके अंदर ही कंसोलिडेटेड है। ओके, एनर्जी पावर, दो बचे। मयूर, हाँ, ओके। सो एफएमसीजी एक जो है, ओके, एफएमसीजी नहीं, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल है। ओके, लास्ट वाला कौन सा है? ऑयल एंड गैस, ठीक है। मयूर, राहुल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमने यहाँ पे रख दिए है। लेट्स सी कौन यहाँ पे कौन सा है। पहला ऑटो सेक्टर है, सो ऑटो सेक्टर है पहला, जिसने 22% रिटर्न दे चुका है। दूसरा जो है वो है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जो डे टू डे बेसिस आप हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ओके, इट कम्स अंडर एफएमसीजी आल्सो एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स उसमें भी आता है। उसके बाद आपका हेल्थ केयर आ गया, ओके, उसके बाद आपका फार्मा आ गया, और आपका रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोला है वो आ गया। तो आप कंपेयर कर लो, आपने जो बताया वो इसमें से कितने सही है और कितने गलत है। नाउ दिस डेटा इज बेसिकली टिल 24 दिसंबर में, मैंने लास्ट वीक तक के कवर किए हैं इसमें, ओके, पूरे। सो दिस इज व्हाट द करंट परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है। तो आप मुझे अभी मुझे आपको आपने ये बता दिए, मुझे आप कोई बता सकता है अभी 2025 में कौन से पर स्टॉक सेक्टर्स परफॉर्म करेगा? अभी ये परफॉर्म जो हुआ है वो आपने बताया, अभी मुझे बताओ 2025 में कौन से अच्छे करेंगे आपको ऐसा लगता है? मैं यहाँ पे बैठा हूँ वो दिखाने के लिए ही, बट मैं ये जानना चाहता हूँ उसके पहले कि आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर आगे बढ़ेगा? पहला ऑटो आया, एक आंसर मेरे पास। राहुल, और कोई? मुझे 4 या 5 चाहिए। एनर्जी पावर एनर्जी एंड पावर, ओके, and solar to be specific. हाँ, ओके, रिन्यूएबल एनर्जीज, फार्मा, ओएनजीसी मींस ऑयल एंड गैस, ओएनजी बोलता हूं मैं। AI technology related funds. Which one? AI related. AI related. So basically that is a technology related funds. Okay. Yes. All right. और And- कोई? Mm, FMCG फिर से आया है, ओके। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। और किसी के पास है कुछ?
बैंकिंग, एक बैंकिंग आ गया. ऑल राइट, आई थिंक इट शुड नॉट हैपन. हमने सब नाम ले लिए बात. सो ठीक है, हमारा इकोनॉमी इज लाइक कंटिन्यूअसली गोइंग टू राइज इन 2025. ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, दैट इज एविडेंट. बट डेफिनेटली वही होगा कि जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स है वो आउट परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है. मींस जो ट्रेडिशनल चल रहे हैं वो. ओके, एंड दैट्स वेयर मेरा जो एनालिसिस है, प्योरली मेरा नॉलेज, मेरा एनालिसिस कहता है कि पहला सेक्टर जो है वो है ईवी. इसमें मैंने डाला. क्यों दिया है उसका रीजन सबसे नीचे है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दिस. एंड आपको कुछ ही दिनों में कुछ ऐसी न्यूज आएगी जो आपका डीजल और गैस और इवन पेट्रोल शायद प्राइसिंग भी बढ़ जाएगी. उसके रीजन है पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल रीजन है, बिकॉज ऑफ डॉलर प्राइसिंग. नंबर 2, रशिया का जो रिजर्व है इट इज वेरी लिमिटेड नाउ. जो हमारी कंप्लीट डिपेंडेंसी है वो वहां पे है. इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आप सब्सिडीज बहुत ज्यादा देखोगे. गवर्नमेंट विल प्रमोट मोर. एंड देन जो हमारे ईवी के लिए लगने वाले जो पार्ट्स है, क्योंकि ये इकोसिस्टम है, इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट कोई एक महिंद्रा ईवी बना के दे रहा है, बिकॉज इकोसिस्टम उसने एक साल पहले डिसाइड किया होगा, तब जाके आज डिलीवर कर पा रहा है. ये दो जो नई वेरिएंट आई है, राइट. सो सिमिलरली इन अदर व्हीकल कंपनीज आल्सो दे विल बी यूजिंग द सेम थिंग. ओके, क्योंकि एक के भरोसे कोई ईवी के पार्ट्स सिर्फ वो एक कंपनी के लिए नहीं बनती है, सब अलग अलग इकोसिस्टम से बनती है. So I am specifically mentioning the EV now. Okay, EV का मतलब यहाँ पे हो गया जितनी भी EV होगी, it's not just commercial या passenger, ये सब हो गया. Okay, so try to focus this particular one sector. EV sector भी है, आपको वो मिल सकता है. आप कुछ ऐसे साइट से जहाँ पे EV sector में क्या है. Second, Rahul mentioned about the renewable energy, that is the green energy, which comes from your turbine, comes from solar, comes from multiple ways of resources. So जिसमें हाइड्रोजन हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, then your what do you call फॉसिल फ्यूल से भी आजकल वो हो रही है जो रीयूजेबल हो सकती है. ओके, सो यू कैन यूज द सेकंड इज ग्रीन एनर्जी. Now third is like innovation technology, wherever AI, okay, AI being used, AI ML यूज हो रहा है, जहां पे साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग यूज हो रहा है. Those will be your technology innovations kind of a sector. Okay, अभी ये टेक्नोलॉजी, आईटी और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में क्या फर्क है, तो थोड़ा सा फर्क है. India has only 3 sectors. One is the hardware, one is the software, one is the outsourcing services. Okay. Now, is it specific company working on a technology innovation? One company? No, they are into almost all 3 sectors. You need to find out which company basically into the AI, ML, cyber security, blockchain and all. Those are already providing services to the customer. Okay. So service-based company ही maximum technology innovation में है. You need to find out their roadmap. You can get it through their corporate action. AGM में वो लिखा गया है, जहां पे AI ब्लॉकचेन वो कंपनी लॉन्च कर रही है, लॉन्च कर चुकी है या उनके कितने कस्टमर्स हो गए हैं. AGM जो एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट जो होती है वहां पे आपको मिल जाएगा. So I am basically throwing some pointers wherein you will be able to find out those companies. और ये अवेलेबल है फ्रीली. नेक्स्ट है आपका रियल एस्टेट, बट नॉट दैट रियल एस्टेट व्हाट यू थिंक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. वो रियल एस्टेट के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट वेर एवर दे आर ट्राइंग टू बिल्ड मोर एंड मोर कोवर्किंग स्पेस. ओके, उसके बाद ऑफिसेस, आईटी के ऑफिसेस बड़े बड़े जो बन रहे हैं, और डेटा सेंटर्स, जहां ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये पर्टिकुलर 2-3 चीजों में, दैट रियल एस्टेट विल ग्रो लाइक एनीथिंग. Okay, because there is a change being seen in last couple of quarters, not just one. People are trying to build hybrid cloud. Okay, people are trying not to have their own offices, they want to use it co-working space. Okay,
even though in the smaller cities also, they don't want to invest and build their own office or build their own data centers. They are going for the small, and there is a huge demand in sale. Okay, so आपको रीजन जो है उसका, मेरा जो रीजन है मैंने यहाँ पे आपको दिया है. एंड फिफ्थ इज योर हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में आपका फार्मा भी आ रहा है, बट फार्मा से ऊपर वाला मैं ये बोल रहा हूँ. व्हाई? बिकॉज ऑफ इफ यू सी दिस पर्टिकुलर चेंज इन 2025, जो एज गैप जो है, एज जनरेशन, हमारे नेक्स्ट ईयर में बहुत से लोग एज, बहुत एक पर्टिकुलर एज है वो क्रॉस करने वाले हैं. दे विल नीड मोर हेल्थ केयर सर्विसेज एंड दैट विल बी अप टू 2050 तक. सो इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर इज रिक्वायर्ड, वो लगने वाली है, बिकॉज दे आर मूविंग टूवर्ड्स देयर 50s and 55, 60 एज. सो इसीलिए आपको हेल्थ केयर जो सेक्टर है, ओके, pharma is one thing. Pharma can boom only once, twice, okay, due and because of reasons like COVID और ऐसा हो जाए तो. लेकिन हेल्थ केयर जो है, जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, आपका चेकअप हो रहा है, वो सर्विसेज बढ़ रही है और वो बढ़ती रहेगी. इसका जो अगर आप देखा जाए तो इसका मैं देखता हूं 5x, मैं इसको नेक्स्ट 3 years में इट विल ग्रो लाइक 5-fold. ओके, और रीजन मैंने दिया है आपको, मीडियम एज और वो सब डाला है. सो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है किसी को, राहुल या किसी और को? ऑलराइट, सो शायद किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है. ऑलराइट, व्हाट एल्स वी आर डूइंग? वी आर डूइंग लाइक रिसर्च एनालिसिस फॉर कपल ऑफ ब्रोकरेज हाउसेस नाउ. ओके, हम कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के लिए भी रिसर्च और एनालिसिस स्पेसिफिकली इंडियन स्टॉक मार्केट पे हम करके दे रहे हैं. ओके, दैट इज हाउ वी आर करंटली बेसिकली वन ऑफ द मेन वर्क व्हिच वी आर डूइंग फॉर द ब्रोकरेज हाउसेस. वी आर डूइंग रिसर्च और एनालिसिस करके देते हैं. दैट इज फॉर द मंथली बेसिस. हर मंथ जो उनका न्यूज़लेटर आते हैं उसमें हम देते हैं. दूसरा, हम ट्रेनिंग और मेंटोरिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग देते हैं हम स्टॉक मार्केट और बाकी इसका. हम आपको, आपने कहीं से सीख लिया है स्टॉक मार्केट एंड यू आर नॉट गुड एट इम्प्लीमेंटिंग योर लेट्स से स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट करना है, और आपको कुछ भी, आपको बेसिक पता है बट इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो आपकी स्ट्रेटजी सही है गलत है या इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो नहीं पता है, तो हम हैंड होल्डिंग करते हैं. We align our people, okay, those are there from last minimum 2 years, maximum 5 years, and they will help you to design your portfolio, how to analyze your portfolio. तो वो भी एक नया सर्विस हमने स्टार्ट किया. ओके, उसके बाद हम कुछ ऐसे जो पोर्टफोलियो जो है लोगों के, हम वो मॉनिटर कर रहे, ट्रैक कर रहे, बिकॉज दोज आर वर्किंग प्रोफेशनल. ओके, हम एनालिसिस करके देते हैं, हम रिकमेंडेशन नहीं देते हैं. हम एनालिसिस करते हैं और हम उसको ट्रैक मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पे करके देते हैं, और हम उसको वहां पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में से या जो भी है सिक्योरिटी उसमें से निकल जाओ, ये हम बताते हैं. अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन. ओके, वी आर नॉट शेयरिंग एनी काइंड ऑफ एडवाइस और कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं. वी आर नॉट मैनेजिंग एनीबॉडीज पोर्टफोलियो. बस हम नहीं मैनेज करते, हम आपको बताते हैं कैसे मॉनिटर करना है, ट्रैक करना है. और ऑफलाइन आपका मॉनिटरिंग जो है वो हम ऑफलाइन शीट में करते हैं, गूगल शीट में, ना कि आपके अकाउंट में करते हैं. क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको बिहाफ ऑफ हमारे से कोई करके देगा आपको. ओके, सो यही था बेसिकली. आई थॉट मेक इट लाइक अ छोटा और रिसोर्सफुल हो. उससे और एक चीज आगे मैं और दिखाता हूं, जो लोग ऑलरेडी, दोज हु आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू द ग्रुप एंड जिन्होंने कोर्सेस किए हैं उनके लिए मैं कुछ दे रहा हूं, वो दो कंप्लीटली फ्री है. यू कैन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. राहुल, कैन यू कंफर्म, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? Yes, Pawan, I can see. ओके, सो यहाँ पे मैंने वो 5
सेक्टर्स डाल दिए, देखो ईवी एंड ऑटो कंपोनेंट्स बोला है। ओके, मैंने उसको बेसिकली की ड्राइवर्स क्या है वो भी बताया, क्यों व्हाई दिस पर्टिकुलर सेक्टर विल ग्रो ये बताया, और उसमें से कौन से प्लेयर्स विल मेक बेसिकली गुड परफॉर्मेंस, दे विल बेसिकली परफॉर्म। ओके, क्यों है, अपॉर्चुनिटीज क्या है वो मैंने लिख के दी है यहाँ पे। रिन्यूएबल एनर्जी में कौन करेगा परफॉर्म वो भी मैंने कुछ नाम दिए हैं। सो यू विल हैव लाइक सेक्टर्स मिल गए आपको। ओके, ग्रीन एनर्जी मिल गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल गए आपको, हेल्थ केयर मिल गया, टेक्नोलॉजी इनोवेशन मिल गया, राइट। ये 5 सेक्टर्स तो आपको मिल गया, रियल एस्टेट मिल गया है, एंड यू गॉट टू एटलीस्ट दो नाम ऐसे मिल गए जो लोग इसमें काम कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी, राइट डाउन दिस ऑल, टेक अ स्क्रीनशॉट, और ये आप काम करो, और इसमें से जो सेक्टर्स दिए हैं और उसमें वो जो प्रोमिनेंट प्लेयर है उनका लास्ट एटलीस्ट 3 क्वार्टर्स कैसा परफॉर्मेंस है, और उनका एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कमिंग मंथ, दिस मंथ बेसिकली एंड ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में होगा, उसमें चेक करो कि उनके व्यूज, उनका इन्वेस्टमेंट कितना वो लोग उनके सेक्टर में डाल रहे हैं। ओके, if at all these things are into their roadmap in a very next quarter और 2 क्वार्टर्स में कितना सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हिसाब से आप आपका डिसीजन ले सकते हो। ओके, सो आई थिंक आई हैड गिवन 80%, नाउ यू हैव टू डू योर 20%। 80-20 वाला रूल लागू पड़ता है आपको, अगर ये खुद आपको निकालना था तो आपको 80% टाइम देना पड़ता था। सो आपका 80% टाइम मैंने बचा दिया, आपको सिर्फ 20% इसके ऊपर रिसर्च करना है, वैलिडेट करना है, एंड देन आप इसको ट्रैक कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग इसमें इन्वेस्ट करो या कुछ करो, आपको मैंने हाई लेवल पे गाइडलाइन दे दी है, ये मेरा कंप्लीटली रिसर्च है। अगर जो लोग ऑलरेडी ये मेरे जो कोर्सेस या कुछ ऐसे कर चुके हैं उनके लिए ये शीट जो है मैं शेयर करता हूँ लिंक, आई विल शेयर दिस इनटू चैट विंडो, और मैं उनको एक्सेस दे दूंगा वहां पे। तो जो लोगों ने ये कोर्सेज कर चुके हैं या जो लोग ऑलरेडी मेरे से बहुत पहले से कनेक्टेड है उनके लिए ये शीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। और अभी आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक स्टॉक है, लेकिन इसमें लगभग 10 स्टॉक हर इसमें रखे हैं। ये देखो हर इसमें 10-15 स्टॉक, और मैंने अगर आप देखो 1 2 3 4 5 ये 5 सेक्टर्स भी रखे हैं। अगर जो लोग कनेक्टेड नहीं थे और कनेक्ट हुए हैं और जिनको इसको एक्सेस चाहिए, दे नीड टू जस्ट पे अ स्मॉल अमाउंट, 99 रुपीज आपको सिर्फ पे करना है। ओके, और ये अगर आप पे करते हो तो ये शीट का आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। ओके, व्हाई आई मेड अ पेड, बिकॉज ऑफ आई पुट लाइक आई बिलीव मोर देन 10 days to build this. ओके, विथ रिस्पॉन्सेस क्या है, क्यों ये बढ़ेगा, उसका पूरा एनालिसिस, और इनका सेल्स क्या है, इनका क्वार्टरली प्रॉफिट क्या है, हर चीज आपके सामने कर दी है, सो दैट आपका जो रिसर्च वाला जो काम है वो 80% कम हो जाए, ताकि आप सिर्फ 20% काम करो और आपको वो 10 स्टॉक यहाँ पे मिल जाए। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि ये बाय करो, आपका डिसीजन आप लो। ओके, बट आई मेड श्योर दैट कि ये बेस्ट है। इवन आप यहाँ पे जाते हो, ये देखो ईवी में मींस आपको महिंद्रा दिख रहा है, मैंने टाटा भी बोला है, लेकिन सिर्फ ये कंपनी कार बना रही है, बट उसके लिए जो स्पेयर पार्ट बना रही है, इकोसिस्टम बना रही है, मैंने एक नाम यहाँ पे लिखा है, यू विल हैव ऑलमोस्ट 20+ नेम्स, दोज आर क्रिएटिंग, राइट फ्रॉम मोटर, राइट फ्रॉम चार्जिंग मैकेनिज्म, चार्जर भी लग रहा है, राइट। सो हर चीज का जो एंसिलरी पार्ट जो बना रहा है वो भी मैंने यहाँ पे डाले, you can go ahead and check those also. So you need to just pay 99 rupees for that, and it is not mandatory. मैंने आपको अगर ये लगता है ये मेरा पहला शीट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ऑलरेडी 2 से 3 नाम यहाँ पे मिल चुके हैं। ओके, अगर आपको पूरा चाहिए देन ओनली यू हैव टू पे दैट, एंड मैं आपको मेरा यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। So this is the 99 rupees which you have to pay. Okay.
Chalo. So before concluding this, see every sector has almost 10 तो minimum मैंने दिए हैं. देखो आपको 10 है, यहाँ पे almost 15 है, यहाँ पे आपको 19 है, यहाँ पे आपको 17 है. So imagine the kind of efforts I have put together with all information populated here. Even आप इसको click करोगे तो ये chart आपको खोल के दे देगा. You need not to go and check chart again somewhere. Okay, so I made that sure that कि आपका 80% काम कम हो जाए. All right, so कुछ questions है before going and say bye. Yes. Are these stocks recommended for long-term investment? See, right now we are looking for the sector's growth. Okay, within the sector's growth, the thumb rule for long-term investment, you should look back for a minimum 5 to 7 years and see like that 5-6 ratios which we learned, right? If those are good, their profits are like increasing, even at least the same, even their revenues are increasing from last 3 years, quarterly revenues are or profit ratios going up. Yes, it is. Okay. क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या, बट मैं इतना पक्का 2025 बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब 1 साल के लिए my analysis says it will definitely grow within couple of months and it will last for at least a year, minimum year. राहुल काही क्वेश्चन्स आहे, काही आहे? No, Pawan. Okay, so if you have any questions, you can send an email to my email ID, or there is one more email ID, fire@opensource.circle. Or if you have any online questions, you can send it on a WhatsApp chat, and I will happy to answer that. Okay. और एक चीज है, आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर सीखना है, if you want to learn specific topic, you can share with this chat. Same आपका जो ये जो chat window है उधर share कर दो. I will make sure that it will be ready within a 1 month and we will take that session for the next time. Okay. मुझे topic, I can take a particular topic rather than the entire session. Okay. कि एक topic बताओ कोई भी आपको जो पढ़ना होगा. I will make sure that one topic, I said, okay, let's say indicator is like a big session, but within an indicator, if you say, I want to learn this moving averages, yes, I can take that. Okay. So topic. So हम ले सकते हैं वैसा. If you can share those topics, we will be happy to basically share those information in the next coming session. All right then, thank you so much for your valuable time and have a wonderful day ahead. Next session में फिर मिलेंगे. Okay. All the best and wishing you all the best for your financial 2025 goal also. Thank you. Yep. Thanks, Pawan. Thanks, Yeah. Pawan. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.